with the word of God. आज मेरे लिए एक सभा की बात है आपके सामने परमेश्वर के वचन के साथ खड़े होना। Yesterday morning also I could deliver the word of God with you. कल सुबह भी आप लोगों के सामने परमेश्वर के वचन से मैंने घोषणा किया था। Today morning also we are here to listen from the word of God. आज का सुबह में भी हम परमेश्वर के वचन से सुनने के लिए इधर मौजूद हैं। So sit with a prayerful attitude so that God can speak with you. आप लोग प्रार्थना के साथ बैठना ताकि परमेश्वर आपसे बातें करेगा। Let's pray first. आइए हम प्रार्थना करेंगे। Close your eyes and pray. Our gracious Heavenly Father, we thank you for this morning time that you given us, Lord. We could come together in your presence and sing songs and worship your holy name. Lord, you helped us and you brought us here to sing your praises and worship your holy name, Lord. We thank you for everything that you have done in our lives. And as we are sitting here and to listen from your word, O Lord, be with us and speak to us, and also let our meditation of our heart be acceptable in your sight, Lord. We ask this prayer in mighty name. Amen. Today morning I want to speak from the life of Jonah. आज का सुबह मैंने योना का जीवन के बारे में बताना चाहता हूँ। Jonah comes under the prophetical books. We call it as minor prophet. हमको पता है योना का किताब भविष्यवक्ताओं का किताब के अधीन में आता है। उसमें भविष्यवक्ता का किताब का अधीन में दो भागों में There are 12 minor prophets. उसमें से जो छोटा भविष्यवक्ताओं का जो भाग है उसमें आता है 12 छोटा भविष्यवक्ता का नाम है पूरा। One among them is Jonah. उसमें से एक व्यक्ति है, एक भविष्यवक्ता है योना। And we see in other prophets' life that God called them for ministry. They did God's ministry. बाकी भविष्यवक्ताओं के जीवन में हम एक बात देख सकता है, परमेश्वर उन लोगों को सेवकाई के लिए बुलाया, वो लोग सेवकाई किया। Even if they were reluctant at the beginning, they were thinking, how can I do it? It is a great job. How could I do it? So they were reluctant in the beginning, but God helped them to do their ministry. उन लोगों का पहला जो बुलाहट के समय में वो लोग बहुत बहाना तो बनाया था और थोड़ा घबरा गया था, लेकिन परमेश्वर ने उन लोगों को सेवकाई में मदद करेगा और साथ रहूंगा करके उनको और ताकत दिया था। But Jonah's life is little different from other prophets. योना का जो जीवन है बाकी भविष्यवक्ताओं का जीवन से भी अलग है। And as we go into the background of Jonah, जब हम योना का किताब का भूमिका या पृष्ठभूमि के बारे में पढ़ते हैं, he is a prophet to Israelites. और इज़राइल जनता के लिए भविष्यवक्ता था। And he was delivering the word of God in the year 800 to 750 BC. 800 से लेकर 750 BC बिफोर क्राइस्ट जो समय को जो युग में योना का सेवकाई चल रहा था। And he was delivering the word of God especially to the house of Israel. इन्होंने योना ने उनका सेवकाई में परमेश्वर के वचन खासकर विशेष रूप से इज़राइल का घराने के लिए ही घोषणा कर रहा था। We can see his background on 2 Kings chapter 14 verse 25. ये योना का किताब, ये योना भविष्यवक्ता का किताब का पृष्ठभूमि और इस कहानी दूसरी राजा अध्याय 14 का 15वां वचन से लेकर आप लोग पढ़ सकता है। दूसरी राजा अध्याय 14 का 15 से लेकर। If anyone has taken it, please read. अगर किसी को मिला तो आवाज उठाकर खड़े होकर पढ़ सकता है। दूसरी राजा अध्याय 14 का 15 से लेकर पढ़िए। दूसरी राजा अध्याय 14 चैप्टर 14 वर्स 15 onwards। Now the rest of act of Joshua, Jehoash, that he did and Elisha might, and how he fought with Amaziah, king of Judah. Are they are written in the book of the Second Kings, are you reading from Second Kings? 2 Kings chapter 14 verse 25. या 14 से लेकर मतलब 25 से लेकर पढ़ना। He restored the border of Israel from the Lebo Hamath as far as the sea of the Arabah, according to the word of the Lord, the God of Israel, which he spoke by his servant Jonah, the son of Amittai, the prophet, who was from Gatefer. Yether. Okay, thank you. So here we read Jonah, the son of Amittai, the prophet. इधर हम दूसरा अध्याय 14 का 25 से लेकर जब पढ़ के देखेंगे वहाँ योना का बारे में लिखा है। योना और अमित्थाई का पुत्र एक भविष्यवक्ता। So when we see Jonah's life,
his father is also a prophet. जब हम योना के जीवन के बारे में पढ़ते हैं, उनका पिता भी एक भविष्यवक्ता था। Jonah is the son of the prophet. योना जो है एक भविष्यवक्ता का पुत्र था। According to the verse we see here, as he had prophesied, Jonah had prophesied, the Jeroboam too had captured the land. जब योना का पृष्ठभूमि इतिहास हम पढ़ता है, जेरोबाम जो राजा है, वो जो जमीन को पूरा कब्जा किया था। According to the word of the Lord spoken by Jonah, the land was captured by Jeroboam too. जेरोबाम जो जगह को कब्जा किया, ये परमेश्वर के वचन की और परमेश्वर की बोलने के अनुसार ही हुआ था। So we see here, Jonah is an established prophet who is preaching, who is delivering the word of God to the people of Israel. मतलब हम इधर देख सकते हैं, योना को परमेश्वर आगे बढ़ा के लेके आ रहा है, उन्होंने इजराइल की जनता के लिए भविष्यवाणी कर रहा है। We don't have any kind of calling that gives Jonah to come to the ministry. योना के जीवन में देखा तो उनको सेवकाई में आने के लिए बुलाहट के पीछे और कुछ उत्साहन की बात तो हम नहीं पढ़ सकता है। Just like Isaiah, Jeremiah, they have received the call from the God. जब हम आइज़ाया और यिर्मयाह के बारे में पढ़ते हैं, वो लोग को बुलाहट परमेश्वर से मिला था। But Jonah, we see there is no call. It is mentioned in the Bible. जब हम योना के बारे में पढ़ते हैं, उनको बुलाहट के रूप में कुछ मिला करके बाइबल में नहीं है। But we see that his father is a prophet, उनका पिता एक भविष्यवक्ता था, and his son Jonah is also a prophet. उनका बेटा योना भी एक भविष्यवक्ता था। So they are doing a prophetic ministry to the house of Israel. मतलब पिता और पुत्र दोनों इजराइल की जनता के लिए भविष्यवक्ता का रूप में सेवकाई में हैं। So God is using their family mightily. मतलब इनके परिवार को परमेश्वर ने शक्तिशाली रूप से आगे मतलब इस्तेमाल कर रहा है। Their family is a prophetical family. उनका परिवार ही भविष्यवक्ताओं का परिवार करके हम बोल सकता है। So father and son, both of them are in ministry. They are delivering the word of God to the house of Israel. पिता और पुत्र दोनों सेवकाई में हैं, परमेश्वर की बातें इजराइल के घराने के लिए घोषणा कर रहा है। And when we read the Jonah, the chapter 1 to 3, all these chapters, when we read there, we see Jonah's ministerial calling in between his prophetical ministry. जब हम योना का किताब अध्याय 1 से लेकर 3 तक पढ़ेंगे, योना का बुलाहट के बारे में हम वहां अध्याय 3 तक हम पढ़ सकता है। As he is ministering in Israel, उन्होंने इजराइल में सेवकाई में थे। God gives him another call that you go to Nineveh. परमेश्वर उनको दूसरा एक आज्ञा देता है, तू निनवे में जाना है अभी। It is not that now he is anointed with the spirit of prophecy and he is sending to Nineveh. Already he had the spirit of prophecy and now he is called to go to Nineveh. इसका मतलब ऐसा नहीं है निनवे में जाने का समय ही उनको भविष्यवाणी का वरदान मिला करके उनको पहले से ही ये वरदान है, अभी एक नया आज्ञा मिला है निनवे में जाना है करके। Now he is an experienced prophet. मतलब इनको भविष्यवक्ता का रूप में एक अनुभव तो है। He has an experience in ministry. मतलब सेवकाई में उनको अनुभव है। He has delivered the word of God to the people of Israel and seen the results in the people of Israel's life. इस्राएल के जनता के बीच में परमेश्वर के वचन का घोषणा किया है, उनके परिणाम भी उन्होंने देख चुका है। What God has done to the people of Israel, he has seen all those things. परमेश्वर ने इस्राएल के जीवन में क्या किया उन्होंने देख चुका है। And he knows that whatever God says, God will do it. इनको ये भी पता है परमेश्वर जो बोलेगा वो करेगा भी। So Jonah, now when we read the prophetical book Jonah, there he is called to go to Nineveh. जब हम योना की किताब पढ़ते हैं, वहां लिखा है उनको अभी एक आज्ञा, एक नया बुलाहट मिला है निनवे में जाने के लिए। But when we see Nineveh is the capital of Assyrians. जब हम निनवे के बारे में पढ़ते हैं, वो असीरिया और अजूर लोगों का एक राजधानी था। These Assyrians are the ones who captured Israel. ये असीरिया और असूर का लोग जो है, यही लोग इजराइल लोगों को कब्जा किया था। These Assyrians were captured Israel and they were Israelites were slavery under these Assyrians. यही असीरिया का लोग आकर इजराइल के लोगों को कब्जा किया था और बंधुआई में लेकर गया था। From these Assyrians only, this Jeroboam too restored the land back to his territory. ये जेरोबाम जो राजा है, उन्होंने उनकी अधीन में एक जमीन को कब्जा किया था इस असीरी लोगों का अधीन से। First of all, Jonah
prophesied that you will restore the land from the hand of Assyrians. पहला योना का भविष्यवक्ता ये था, असीरिया के लोगों के हाथों से और उन लोगों के हाथों से इस जमीन को तो वापस कब्जा करेगा। Now God is sending him to Assyrians to deliver the word of God that you Assyrians, you will be you are in trouble, the land will be abolished. मतलब असीरिया के लोगों का ऊपर और असीरिया के लोगों के सामने जाकर भविष्यवाणी करने के लिए योना को परमेश्वर भेज रहा है। So when he was called to be in Assyria, जब इनको असीरिया में जाने के लिए बुलाहट मिला, he was refusing to go to Assyria. उन्होंने असीरिया में जाने के लिए मना किया है, These Assyrians were the enemies of Israel. क्योंकि इजराइल लोगों का शत्रु लोग थे इस असीरिया का लोग। I mean, these Assyrians are the enemies of Jonah. मतलब योना का भी एनिमी जो शत्रु है इस असीरिया का लोग। These Assyrians are enemies to these people. They were once they laid so many slavery upon them. मतलब इस असीरिया का लोग ये झुंड के लिए, इस्राएल के झुंड के लिए शत्रु के समान है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बंधुआई में बंधुत्व में लेकर जाकर सताए थे लोग। And Nineveh is the place of the capital of Assyrians. मतलब इस जो निनवे है इस असीरिया का राजधानी है। Nineveh is the capital of Assyrians, where all kinds of people comes together there. ये असीरिया का सारे लोग वहां आते थे, जुड़ते थे, वो जो जगह है और राजधानी है निनवे। Then Nineveh is the throne for the Assyrian king. ये राजधानी में जो है असीरिया का राजा के लिए एक राजपीठ की समान, सिंहासन की समान है निनवे। The place of trade. मतलब व्यापार का एक जगह है असीरिया, ये जो जगह निनवे। It is just like a city in our place today. आज हम देखा तो हमारा जगह में ये जो शहर करके हम मानता है उसकी समान ही है निनवे। So by looking at these all kinds of Assyrians, he was refusing himself to go to Nineveh. ये सारी बातों को देखने के बाद योना ने बोला मैं निनवे में नहीं जाता हूँ। And he was not caring the word of God. मतलब ये परमेश्वर के वचन को ज्यादा ध्यान और आदर नहीं दे रहा है। He was looking at the worldly things. मतलब दुनिया का जो बातें हैं वो जो शहर के बारे में सोचकर इन्होंने मना किया। What is the identity of Jonah? योना का पहचान क्या था? He is a prophet. उन्होंने एक भविष्यवक्ता है। He is a prophet who delivers the word of God to the people. इन्होंने एक भविष्यवक्ता है, परमेश्वर का भविष्यवाणी लोगों को पहुंचाने वाले भविष्यवक्ता है। And prophets are called the mouthpiece of God. भविष्यवक्ता लोगों के बारे में हम उसका अर्थ बताए तो परमेश्वर का मौखिक और परमेश्वर का शब्द देने वाला है। So Jonah is the mouthpiece of God. परमेश्वर के शब्दों को देने वाला एक व्यक्ति है योना। That is his identity. उनका पहचान वही है। So he needs to be identified with the God's mouth. मतलब परमेश्वर का वाणी को, परमेश्वर के शब्दों को देने वाले एक व्यक्ति और पहचान है योना का। And the message that he received from God, not from the world. उन्होंने उनको जो संदेश मिला वो दुनिया के संदेश नहीं है, परमेश्वर से मिले हुए वाणी है। It is God who gave him the message. मतलब परमेश्वर ही उनको एक संदेश दे चुका है अभी। So he should deliver it to the people of Nineveh. मतलब ये योना ने ये बात है जरूर इस्राएल के सामने जाकर घोषणा करने का है, बताने का है। Because of his identity as the mouthpiece of God, it is his responsibility to do it. मतलब ये परमेश्वर को वाणी को पहुंचाने वाला भविष्यवक्ता है, यही इनका पहचान है। तो अगर ऐसा है तो इन्होंने जरूर परमेश्वर का शब्दों को बताने का है। But Jonah forgot his identity as a prophet. मतलब इधर बात ये है योना ने उनका पहचान तो भूल चुका है, अभी मैं एक भविष्यवक्ता हूँ करके। He forgot his identity. उन्होंने उनका पहचान को भूल चुका है। So God restores the identity of Jonah. मतलब योना का जो आइडेंटिटी, पहचान को परमेश्वर वापस लौट कर याद दिला रहा। This is the title of sermon today. God restores the identity. ये आज का हमारा चिंता का शीर्षक ये है, परमेश्वर हमारा पहचान को वापस लौटाएगा। God restores everyone's identity. परमेश्वर सभी लोगों का जो पहचान को वापस लौटाएगा। Even if we are reluctant to show our identity, God restores our identity in midst of people. अगर हम बहाना बनाकर हमारा पहचान को दिखाने में थोड़ा पीछे हट गया तो भी परमेश्वर हमारा पहचान को वापस लौटाएगा। Here we see in Jonah, he was reluctant. इधर हम देख सकते हैं योना ने बहाना बनाया था Because of the situations, क्योंकि उनका सामने संदर्भ ऐसा था, because of the
things that is going in Nineveh, और निनवे में जो बातें चल रहा था इसकी वजह से, because Nineveh is his enemy, निनवे का लोग इनका शत्रु लोग है, and इसलिए he don't want them to be saved. इन लोगों को उद्धार पे लेके आना, उद्धार मिलना करके पसंद नहीं था योना को। Israelites wanted Assyrians to be collapsed and they all should be dead. इज़राइल का जनता का सोच ये था असीरिया का लोग पूरा नष्ट होना है, वो लोग मर जाना है। This was the thinking of Israelites because they were against Israelites. क्योंकि इज़राइल लोग यही सोच में था, क्योंकि ये लोग इज़राइल का विरोध करा था। We will also have such kind of thinking in our mind. Those who are against us should be destroyed. हम भी खासकर ऐसा वाला सोच वाला लोग है, हमको जो लोग विरोध करता है और नष्ट होना करके हम भी सोचता है। Even in your ministry places, we will have this thinking that those who are against the ministry, we pray that they should be destroyed. हम भी हमारा सेवकाई के सफर में जाने के समय ऐसा ही सोचता है, हमारा सेवकाई का विरोध जो खड़ा होता है वो नष्ट होना है करके। But Jonah is reluctant here. He is not ready to go to the place where God is sending him. योना भी ऐसा वाला सोच में था, इसलिए उन्होंने परमेश्वर की जगह पे जाने के लिए बोला, वहां जाने के लिए मना किया था। So he reluctantly he went to another place. He took the ship to that sea. इसलिए उन्होंने खुद और एक जगह पर चले गया, नाव पर चढ़कर और एक जगह पर जा रहा है। That sea is the nearest place. उन्होंने और एक जो किनारा जो पैसा जगह है तर्शीश में जा रहा है। There is no persecution. वहाँ कोई सताव नहीं है, There is no difficulty. वहाँ कोई मुसीबत नहीं है, There is no enmity. वहाँ कोई शत्रुता नहीं है। So he is going to the friendly place. उन्होंने एक दोस्ती एक जगह है, मतलब एक अच्छी जगह को देखकर वहाँ जा रहा है। This approximately Nineveh is 800 kilometers away from the place where this Jonah was living. योना की जगह जो है वहाँ से 800 किलोमीटर दूर है निनवे। It is all about, I think, from here to Chennai. इधर से चेन्नई जाने का उतना दूर होगा। Here to Kanyakumari to Chennai, like that. इधर से कन्याकुमारी से चेन्नई जाने का जो किलोमीटर है उतना होगा। So those days there was not like there was no transportation facilities as we have today. आज हमारे सामने जो ट्रांसपोर्टेशन जो फैसिलिटी है, सफर का जो स्रोत हमारे लिए जो है उस समय ऐसा नहीं था। Yes, it was difficult to travel. उस समय बहुत मुश्किल था सफर करना। Even our missionaries in those days traveled difficultly to different places to share the word of God. और पुराना युग में मिशनरी लोग जो सेवक लोग हैं वो लोग भी बहुत मुश्किल से सफर करते थे। They had to travel months and years from their place to India through ship and to deliver the word of God. उनका जगह से उनका देश हमारा इंडिया में आने तक उन्होंने बहुत सालों का और बहुत महीनों का और उन्होंने बोट पे नाव पे सफर करना पड़ता था। Yes, Sadhu Sundar Singh had to travel with his foot through all these Himalayan mountains to go to Nepal and to go to China to deliver the word of God. साधु सुंदर सिंह के जीवन के बारे में देखा तो उन्होंने बहुत लंबा सफर किया था नेपाल और चाइना तक पहुंचने के लिए। So these are the people of God. Though they were given the word of God to deliver to the people, they had to take some difficult situations. यही लोग जो है उन्हें जीवन का परमेश्वर के लिए दे दिया, इस मुश्किल का समय में भी दे दिया, क्योंकि परमेश्वर का वचन को लेके आगे चलने का था। Even it was difficult, they had to do it. वो बहुत मुश्किल था, लेकिन इनको ये करने का ही था। When we read Nahum chapter 3 verse 3, chapter 3, there we see the situation of Nineveh during Nahum's time. जब हम नाहूम की किताब पढ़ते हैं वो वहाँ देख सकता है इस निनवे के बारे में। The Nineveh, how was the situation in Nineveh? जो निनवे का और थोड़ा पृष्ठभूमि और उनका संदर्भ कैसे था, हम नाहूम की किताब में पढ़ सकता है। If anyone of you can read in Hindi or English, अगर किसी को मिला तो नाहूम chapter 3 verses 1 to 3. अध्याय 3 का 1 से लेकर 3। नाहूम अध्याय 3 1 से लेकर 3। A seaman charging, flashing sword and glittering spear, bows of slain. नाहूम अध्याय 3 1 से लेकर 3। Wow to the bloody city and full of life and plunder, no end to play. The crack of the whip and rumble of the wheel, galloping horse and bounding Chariot. Okay, read. horsemen charging, flashing sword and glittering spear, host of slain.
heaps of corpses, dead bodies without end. They stumble over the bodies. Okay, thank you. So there in Nahum chapter 3, you can read from 1 to 10. There you see this full chapter is upon Nineveh only, right? Written upon Nineveh only. नहूम अध्याय 3 का 1 से लेकर पूरा पढ़ के देखना, ये पूरा अध्याय निनवे के बारे में लिखा गया है। So there you can read this Nineveh is a wasted land. ये जो निनवे ऐसा एक जगह था, बहुत कठिन वाला एक जगह था। Nobody deserved to go there. वहां जाने के लिए कोई पसंद नहीं करता था। As we read these three verses, there it is written, it is a bloody city. वहां बहुत सीधा सीधा लिखा है, वो बहुत एक खराब वाले एक शहर है, Full of lies and plunder. वहां ज्यादा झूठ बोलने वाले लोग हैं, बुरा काम करने वाले लोग हैं। No end to the prey. No end to the prey. और वो लोग मतलब बहुत एक बुरा शहर के समान ये निनवे के बारे में वहां लिखा है। There we see dead bodies without end. वहां जो मरा पड़ा है, जो शरीर जो है, मतलब डेड बॉडीज जो है, वो बहुत ज्यादा थे। They stumble over the bodies. मतलब उसका ऊपर से ही वो लोग चलते थे। As you read when you are free, then you can understand how it is difficult to deliver the word of God in any way. ऐसा वाले एक जगह पर जाकर परमेश्वर का वचन बताना कितना मुश्किल है, वहां बहुत अच्छा से हम पढ़ सकता This है। Nahum chapter 3 verse 3, this chapter is written about Nineveh only. ये नाहूम अध्याय 3 पूरा का पूरा निनवे के बारे में लिखा गया है। This Jonah and Nahum did not live on the same era. जोना और नाहूम दोनों एक ही युग में नहीं जिया थे। They lived different eras. दोनों का जिंदगी का और दोनों का युग में बहुत फर्क है। Approximately after Jonah, 150 years after Jonah, Nahum delivering this word. जोना का जीवन की 150 साल के बाद नाहूम का सेवकाई हम देख सकता है। Actually, during Jonah's time also, this situation was there. We can little bit we can see. योना का जो समय में भी एक संदर्भ निनवे का संदर्भ से ऐसे ही था, हम देख सकता है। Because in that chapter, this Jonah's prophetical book itself, he says that there it is written, they withdrew all the bad things they were doing. वो लोग जब हम योना की किताब पढ़ते हैं, हम देख सकता है वो लोग जो बातें छोड़ चुका था, वो भी फिर भी वो लोग दोबारा करने लगा। When we read Jonah chapter 3 verses 10, योना अध्याय 3 का 10 पढ़िए। When God saw what they did, how they turned from their evil way, God relented of the disaster. Then He had said He won't do not them, and He did not do it. so there we see that they returned from their evil ways. मतलब वो लोग उनका जो गंदा जो बातें करते थे, मतलब बुरा जो जीवन जीते थे, वहां से वो लोग वापस लौटा था। The violence they did with their hands, the violence. जो अक्रमकारी जो लोग कर रहा था उन लोगों के हाथों से, So all these violence, evil things, they left everything and they turned to God. जो शैतानिक बात है, जो बुरा बात है और अक्रम जो बात है वो लोग कर रहा था, वहां से वो लोग वापस मुड़ के आ गया। So this Nineveh city is known for its violence and evil things. मतलब ये जो निनवे के शहर जो अभी जो है वो बुरा चीजों के लिए माना नहीं जाता है। This is why, looking at these situations in Nineveh, this Jonah is reluctant to go there. ये जो सारी बातों को मन में रखते हुए योना ने वहां जाने के लिए पसंद नहीं किया, It is an evil city. क्योंकि वहां एक शैतानिक शहर है। There is so much violence. वहां बहुत बुरे चीजें, बुरा कामों को If करता है। I go and stand there alone, मैं how वहां will I अकेले survive? मैं वहां अकेले जाकर खड़ा हुआ तो मैं कैसा बच सकता हूँ? They don't even have a second thought before killing. वो लोग किसी को मारने में दूसरी बातें सोचता भी नहीं है। They straight away they will kill. अगर किसी को मारना है तो सीधा वो लोग मार डालते हैं। So these are the things that might provoke the thought of Jonah. ये चीज होगा और इसके कारण की वजह से होगा योना को वहां जाने के लिए मन नहीं हुआ। Because always in our mind also we will not go to. We don't have a desire to go to the place where there is so much violence. हमारे जीवन में भी हम ऐसा ही है, कुछ बुरा जगह या कुछ जगह पर वहां बुरा चीजें चल रहा है, बहुत परेशानियां हैं, वहां जाने के लिए हम भी पसंद नहीं करता। We always avoid the place where there is no safety for our lives. जो हमारे लिए कंफर्ट जगह नहीं है, कुछ सिक्योर नहीं है, सेफ्टी नहीं है, वहां जाने के लिए हम भी पसंद नहीं करता है। With knowing there is a bomb, we don't
even dare to go to that room. और जो जगह पर बॉम्बे करके समझ लिया तो हम वहां जाने का बिल्कुल पसंद नहीं करता है। We know there is a life threat for me. We will try to avoid that situation. मेरे जीवन का खतरा वो जगह पे है करके समझ लिया तो हम पूरा का पूरा उसका वो जगह का छोड़ना ही चाहता है, Because we want to save our lives. क्योंकि हम खुद का जीवन को बचाना चाहता है। Here, that is the same thing that Jonah was trying to save his life from going to Nineveh. जैसा हम सोचते हैं वैसा ही योना भी वहां सोच रहा था निनेवे में जाने के लिए, वो भी इसलिए मना किया था। He was reluctant to go. वहां जाने के लिए उनको पसंद नहीं था। So he took the ship to Tarshish. उन्होंने इसलिए नाव पे चढ़कर तर्शीश की ओर चला गया। As the way he was going to Tarshish, उन्होंने तर्शीश में जाने का सफर में this is not the will of God. ये परमेश्वर की योजना नहीं था। He disobeyed the will of God and took the ship to Tarshish. ये परमेश्वर का योजना को नहीं माना, आज्ञा को छोड़कर खुद की योजना पे और इच्छा पर चलने लगा। Upon going till the shore, the foot is on the will of God. जिन्हें उन्होंने और शोर की समुद्र के किनारे तक चला, वो परमेश्वर की योजना था। But the ship that he had taken is without the will of God. मतलब जो नाव के पास तक चला था परमेश्वर की योजना में यही था, वहां से लेकर जो नाव पे चढ़ा वो परमेश्वर की योजना का विरोध That था। he had to take the ship to go to Nineveh, but he had taken the ship to go to Tarshish. उनको ये जो नाव पर लेना था, निनवे जाने का नाव पे चढ़ना था, उन्होंने तर्शीश भी जाने का जो जगह पे चुना। As a prophet, he disobeyed the commandment of God. एक भविष्यवक्ता होने के नाते परमेश्वर का आज्ञा को उन्होंने नहीं माना। As a prophet, he always delivers the word of God and expects the people of God should hear his word and walk according to the word of God. एक भविष्यवक्ता होने के नाते उनका जीवन ऐसा होना था, मैं परमेश्वर का वचन को घोषणा करूंगा, मेरी द्वारा परमेश्वर का वचन सुनेगा करके। And he himself is disobeying the word that he received from the God. मतलब ये है परमेश्वर का जो शब्द उनको देने के लिए मिला था, उस शब्द को उन्होंने खुद नहीं माना। In this contemporary world, in today's ministerial places, so many pastors are doing the same. So many ministers are doing the same. आज के युग में हम देखा तो बहुत सारे सेवक लोग, पादरी लोग यही बातें कर रहा है। They speak the word of God. उन्होंने परमेश्वर के शब्दों को बताता They है, deliver the word of God to the people and expect the people to follow accordingly. और लोग परमेश्वर का वाणी को लोगों को बताता है, लोगों को करने के लिए बोलता है, लोग करेंगे करके अभी सोचता है, But they themselves are not in the will of God. वो खुद वो बातों को नहीं मानता है, वो खुद परमेश्वर की योजना का अनुसार नहीं है। As this Jonah, he was asked to go to Nineveh, but he went to Tarshish. उन्होंने योना के जीवन में देखा तो निनेवे में जाने के लिए परमेश्वर ने उनको बोला था, उन्होंने निनेवे को छोड़कर तर्शीश में जा रहा था। Here, I want to establish one thing. He took his own will. His will did not accomplish. इधर मैंने एक बात आप लोगों को प्रस्तुत करना, साबित करते बताना चाहता हूँ, खुद का इच्छा के अनुसार उन्होंने चलने के लिए आगे चला, वो खुद का इच्छा पूरा नहीं हुआ। God stopped in between. क्योंकि परमेश्वर उनकी मर्जी को, योना की मर्जी को रोक दिया। Because God wants to restore his identity. क्योंकि परमेश्वर योना का पहचान को वापस लौटाना चाहता है। God wants to restore his identity as a prophet. परमेश्वर योना को जो पहचान है, वो भविष्यवक्ता है, वो पहचान को वापस इनको समझाना चाहता है। And the verse says he was running away from the presence of God. वहां ऐसा लिखा है वचनों में, उन्होंने परमेश्वर की हुजूरी से भाग रहा था। If you get time, please read the Jonah chapter 1 till 4. Okay. आप लोगों को समय मिला तो योना का अध्याय 1 से लेकर 4 तक अच्छे से पढ़ के देखिए। If you read every verse, we will not get the time to go through the sermon. हम हर एक वचन पढ़ा तो पूरा प्रचार इस समय में खत्म नहीं कर पाता है। So it is written that he was running away from the presence of God. उन्होंने परमेश्वर की हुजूरी से दूर भाग रहा था। It is not that he is running away from a human being's presence. और ऐसा नहीं लिखा है उन्होंने किसी मनुष्य का हुजूरी से नहीं भाग रहा है। It is not he is running away from Nineveh. ऐसा भी नहीं लिखा है उन्होंने निनवे से भाग रहा है। He is running away from the presence of God. उन्होंने परमेश्वर का हुजूरी से दूर भागने के लिए कोशिश किया। Let me explain it. मैं और विवरण करना चाहता हूँ। When these people of God when they were taken out from Egypt and they were leading their way towards Canaan,
ऐगुप्त देश से परमेश्वर का लोगों को परमेश्वर ने बाहर लेके आकर कनान की ओर चला रहा The था। presence of God was upon them. परमेश्वर का हुजूरी उन लोगों के जीवन में था। It was upon them. It was showing the way in the morning and in the night. It was there. ऐसा लिखा है उनको सुबह रात को हर समय में परमेश्वर की प्रसन्न परमेश्वर की हुजूरी और परमेश्वर उन लोगों का रास्ता दिखाते हुए चला रहा था। As the pillar of fire and as the pillar of cloud. परमेश्वर का हुजूर उनके जीवन में ऐसा था, एक बादल की समान, एक आग की खंभा के समान उन लोगों को चला रहा था। So as they were going in with the presence, they flourished. They got victory over everything. उन लोगों ने परमेश्वर की हुजूरी के अनुसार, परमेश्वर की योजना के अनुसार चला, उनके जीवन में सारी बातों पर विजय देख पाया। When the presence was not upon them, they got defeated. जब परमेश्वर का हुजूरी से लोग दूर चले गए और परमेश्वर का हुजूरी इनसे दूर हो गया, ये लोग हर जगह पर हार मानना पड़ा। For example, the nation of Ai. वो लोग एक जगह से एक राज्य से लड़ा था, आई करके जो जगह और जोशुआ अध्यक्ष में लिखा है। Okay, so like this Jonah is also moving away from the presence of God. जैसे ही ये योना भी परमेश्वर की हुजूरी से दूर जाना चाहता था। If you are under the presence of God, you are safely safeguarded. हम परमेश्वर की हुजूरी और परमेश्वर की अधीन में हैं तो हम बहुत से एक अच्छा जीवन जी सकता है। If you are running away from the presence of God, your life is at stake. बात ये है, अगर आप लोग परमेश्वर के बुलाहट से, परमेश्वर की हुजूरी से दूर भागना चाहता तो आप खुद जीवन में परेशानी लेके आ रहा है। Running away from the presence of God, and he started to walk in his flesh. मतलब परमेश्वर की हुजूरी से दूर जाने का मतलब हम हमारा शरीर के अनुसार चलना से पसंद करता है। See, he forgot his identity as a prophet, and he started to walk in his flesh. उन्होंने खुद का पहचान को भूल जाकर उनका जो शारीरिक सोच के अनुसार चलना चाहता था। What is the consequence of this forgetting identity? उनको ये परमेश्वर दिए हुए पहचान को भूलने का परिणाम क्या था? As he is traveling towards Tarshish, the sea started to roar. उन्होंने तर्शीश की ओर जा रहा था, समुद्र में बहुत बड़ा तूफान और आंधी आना शुरू हुआ। And the best thing we can notice here is, it is very like a comedy thing. See, every one of them are afraid, but he is the only person who is sleeping. वहां बहुत आंधी तूफान आ रहा है, उनके साथ जो लोग हैं डर रहा था। ये जो बंदा है बहुत हंसने के बाद जैसा लगता है, इसको कोई डर नहीं था। Let me say this here. मैं एक बात आपसे बताना चाहता हूँ, If you are away from the presence of God, the problems that you face, you will not have any kind of this emotion towards the problem. जब मैं बात प्रस्तुत करना चाहता हूँ, आप लोग परमेश्वर की योजना को छोड़कर चलता है, समस्या आएगा, आपको ज्यादा से ज्यादा महसूस भी नहीं होगा। He was sleeping. उन्होंने सो रहा था। He was not caring about this. He did not even know about the problem that is going there. वहाँ जो बातें जो समस्या चल रहा है, इनको पता भी नहीं चल रहा था, इसलिए सो रहा था। And he is under the ship. He is sleeping. The people are coming and waking him. Wake up! We are going into trouble. योना ने बहुत अच्छे से नाव पे सो रहा था। लोग आकर उनको बुलाकर उनको उठाकर बोला, इधर बहुत बड़ा परेशानी समस्या चल रहा है। So there we see that without any hesitation, when they ask, he says about himself. उन्होंने और कुछ नहीं सोचा, उन्होंने खुद के बारे में पूरा खोलकर उन लोगों को बताया। And there we read that in verse 9, chapter 1, verse 9, he says, who are you? They ask, who are you? Where are you from? Where are you going to? What is your thing? Tell me about yourself. He is saying, I am a Hebrew. इसलिए वहाँ उन्होंने अध्याय 1:9 में लिखा है, उसने उसे कहा, मैं इब्री हूँ। I fear the Lord of God of heaven. और स्वर्ग का परमेश्वर वह जिसने who made the sea and the dry land. जल स्थल दोनों ने बनाया, उसी का भाई मानता हूँ। So there he is restoring. There God gives him the consciousness that who he is. वहाँ वचन के मतलब हम ये देख सकता है, उनका पहचान परमेश्वर उनको वापस लौटाकर समझा रहा है। During that problem, there is a trouble that everyone will be destroyed with the ship in the sea.
वहाँ नाव पर जितना लोग है इनकी वजह से सब नष्ट होने का था। And there is God sent some human beings to wake him up from the unconscious situation that he is in. परमेश्वर ने कुछ इंसानों को भेजकर वो योना को जो असमंजस्य में उन्होंने था वहां से उनको वापस उनके पहचान में ला रहा है। They are waking him up and ask him his identity. वो लोग इनको उठाकर पूछ रहा है तेरा पहचान क्या है, तू कौन है? Then he is telling them, I am a Hebrew. जब उन्होंने वापस उनको जवाब दिया मैं एक इब्री हूँ, I am a Jew. मैं एक यहूदी हूँ, I fear God. मैं परमेश्वर का भय मानता हूँ। And now I am running away from the presence of God. अभी मैंने परमेश्वर की हुजूरी से दूर भाग रहा हूँ। My dear people of God, परमेश्वर के प्रिय लोगों, if you are running away from the presence of God, परमेश्वर की हुजूरी से आप भागने वाला है तो God will surely show you that you are away from the presence of God. परमेश्वर आपको जरूर और जरूर आपको कुछ बातें समझाएगा, Because He wants to restore the identity of His people. क्योंकि आपका और हम उनका परमेश्वर का लोगों का पहचान को परमेश्वर वापस लौटाना चाहता है। Here they ask him, "What shall we do with you?" ये लोग योना से पूछा हम लोग आपको क्या करना है? He is saying that then there was we see that there is a lot is being placed, and then the Lord Jonah's name comes up, and they are asking, "What shall we do with you?" He says, "To take me and throw me in the sea." ये लोग उनसे पूछा, उसका 12 वचन में लिखा है, उसने उससे कहा मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो। My dear people of God, परमेश्वर के प्रिय लोगों, when you are waken up from the unconscious situation, there you feel that you are away from the presence of God, you will always have a guilty consciousness that you want to kill yourself. परमेश्वर के लोगों, मैंने आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, हम और मैं और आप में असमंजस से जब हम उठ के बाहर आता है तब होगा एक ऐसा वाले फीलिंग, एक बात हमारा मन के अंदर होता है, मैं खुद मर जाना ही अच्छा है। So they took him and put him in the sea. उनको उन लोग उठाकर समुद्र में फेंक दिया। He thought that he is dead. उन्होंने ये सोच में फेंकने के लिए बोला मैं मर भी जाऊं, But God did not leave him as it is. परमेश्वर उनको वहां भी नहीं छोड़ा। God there appointed a fish to swallow Jonah. परमेश्वर योना को संभालने के लिए एक बड़ा मछली को वहां तैयार करके रखा था। See, when you are away from the presence of God, देखना आप लोग परमेश्वर गुजरी से बाग होने का समय, you have forgotten your identity, खुद का पहचान भूलने के समय, and now you are realized that I should not be here, I should not be like this, I should not be in this place. आप लोग अभी वापस सोचने लगा मैं इस जगह पर छोड़ना नहीं था, मैं परमेश्वर की बातों को मानना ही था, My identity is different. मेरा पहचान तो अलग था, My ministerial calling is different. मेरा सेवकाई का बुलाहट अलग था। Now I have wasted my life. मैं मेरे जीवन को नष्ट किया, I wasted my family. मैं मेरा परिवार के जीवन को नष्ट And किया। now I am in a place where there is no hope. मेरे लिए कोई आशा नहीं है, ऐसा वाला जगह पर मैं हूँ। My dear people of God, मैं परमेश्वर का प्रिय लोगों, in those situations also, ऐसा वाला संदर्भ में भी God will save you. परमेश्वर आपको बचाएगा, God will save you. परमेश्वर जरूर आपको बचाएगा। Something that is over, something that is above the natural things, God will do supernatural things. परमेश्वर आपके जीवन में आप सोचने से परे बहुत बड़ा चमत्कारी कामों को करेगा। There it is not natural to swallow a man and to vomit it out. ये हम सोच के देखा तो एक मछली एक इंसान को उसका मुंह के अंदर लेकर वापस उल्टी करना एक सामान्य बात तो नहीं है। But God can do supernatural things. परमेश्वर ऐसा वाला चमत्कारी कामों को कर सकता है। But and 3 days he was there in the fish, वो मछली का पेट में उन्होंने 3 दिन था, and on the 3rd day he was vomited out. तीसरा दिन ये मछली उनको उल्टी किया है। And then the second time the word of God came to him, दूसरी बार परमेश्वर का वाणी उनका जीवन में आया, and he obeyed the word of God. उन्होंने परमेश्वर का वाणी उनको वचनों को माना है। This is how God restored the identity of Jonah. जैसे ही योना का पहचान को परमेश्वर वापस लौटाया। And again we see in chapter 4 there he was angry upon God. फिर भी उन्होंने परमेश्वर का विरोध गुस्सा किए करते हुए हम देख सकता है। He was not knowing the will of God. परमेश्वर का योजना क्या है उन्होंने पूरा समझ नहीं पाया। Chapter 3 he delivered the message to the people, and they all returned to God, and they all came to God, and God relented upon them. अध्याय 3 में उन्होंने परमेश्वर का वाणी को देश में घोषणा किया, वो लोग मानकर लोग मन फिरा कर आया है।
So God relented upon them, and what God said on the Nineveh did not happen. परमेश्वर ने इन निनिवे के बारे में जो बोला था वैसा नहीं हुआ, ये लोग मन फिराया है। There was a great disaster upon Nineveh, निनिवे के ऊपर बहुत एक कठिन समय आने का था, but God relented over that. परमेश्वर उनको उन लोगों को बचाया। Then this displeased Jonah. योना को ये बात पसंद नहीं आया, He was angry. योना ने बहुत गुस्सा हुआ है, He is praying to God. वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, I should have been in my country. I should have been in my country. मैं मेरे देश में रहने का था, Why should you bring me here? मुझे इधर क्यों लेके आया? Once upon a time, he prophesied there in his country. That happened. परमेश्वर का जो भविष्यवाणी उनका जगह पर उन्होंने किया तो पूरा हुआ। But here in this Nineveh, he prophesied after 40 days, the land is going to be destroyed. There is a great disaster will happen. उन्होंने ये भविष्यवाणी किया 40 दिन के बाद देश पूरा नष्ट होने वाला है, ये बातें नहीं हुआ। And there God teaches him a lesson through a castor plant. परमेश्वर ने उनको एक वृक्ष की रूप लेकर, वृक्ष की उदाहरण लेकर कुछ बातें सिखा रहा है। One day it blew, next day it dried up. एक दिन वो वृक्ष में बहुत अच्छी रूप से और आगे बढ़ के आया, दूसरे दिन वो वृक्ष पूरा सूख गया। So Jonah was upset about that plan. One day it gave him shadow, next day there is no plan to give him shadow. उनको बैठने के लिए, उनके जीवन का ठंड करने के लिए एक निशान को वृक्ष के जीवन के वृक्ष से मिला, दूसरा दिन वो निशान उनके जीवन में नहीं मिला। He is angry on God about the plan. अभी ये वृक्ष के बारे में सोचकर योना बहुत गुस्सा कर रहा है। And he says that, yes, I am angry enough to die. उन्होंने परमेश्वर से ऐसा बोला, मैं इतना गुस्सा हूँ, मरने की और तक मैं इतना गुस्सा में हूँ। God says to him, परमेश्वर उनको ये बातें बताएगा, you pity the plant for which you did not labor. तूने काम नहीं किया इस वृक्ष के लिए, तू वो वृक्ष के बारे में मेरा ऊपर गुस्सा कर रहा है। Nor did you make it grow, तूने उसको बढ़ने के लिए भी कुछ नहीं किया, which came into a being in the night and perished in the night. और रात में वृक्ष बड़ा होने के लिए तू तो कुछ मेहनत नहीं किया, और नष्ट होने के लिए तो कुछ मेहनत नहीं किया। You are worrying about a plant which came in the night and destroyed in the night. तूने ये चीजों पर गुस्सा कर रहा है, एक रात बड़ा हुआ वो वृक्ष, दूसरी सुबह होते हुए वो पूरा सूख गया। And God is telling him, should I not pity on the Nineveh people? There were so many people over there. परमेश्वर उनको इसमें से एक बात सिखाया, क्या मेरे तू जैसे सोचा वैसे और निनिवे के बारे में सोच नहीं पाऊंगा क्या? They do not even know their right hand and left hand. वो लोग उनका बाईं हाथ और दाहिने हाथ समझ नहीं पाया। So these kind of people are there in the world. God is sending us to deliver His word into those people. ऐसे वो लोग आज इस दुनिया पर है, उसकी बीच में परमेश्वर मुझे और आपको भेजना चाहता है। So He identified not only His identity, He identified the identity of God also. उन्होंने खुद का पहचान को वापस लौटा करके भी नहीं है, उसके साथ ही साथ परमेश्वर कौन है ये पहचान की बात लोगों तक पहुंचाया। Let me conclude here. मैंने तो समाप्त करना चाहता हूँ। Many people of God, परमेश्वर के प्रिय लोगों, if you have forgotten your identity, that the call is the call of God upon your life. अगर आप भी कभी अपने जीवन में परमेश्वर दी हुई पहचान को भूल गया तो, So if you disobedient to God, अगर आप परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना तो you have to face some consequences in your lives. परमेश्वर का आपका जीवन में बहुत मुसीबतें परेशानियों का आप लोग सामना करना पड़ता Even है। in those consequences, God is always faithful to restore your identity. और समस्या के बीच में परमेश्वर आपका पहचान को वापस लौटाना चाहता है। God gives you a second chance to restore your identity. आपको दूसरी एक मौका परमेश्वर देगा आपके पहचान को समझने के लिए। Even God restores your identity, and God gives His identity on your life also. परमेश्वर आपको पहचान को वापस लौटाकर खुद का पहचान क्या है आपके जीवन में समझाएगा। As God restored the identity of Jonah and restored God Himself, God's identity, the knowledge of God's identity on Jonah. उन्होंने परमेश्वर ने ऐसा से काम उनके जीवन में किया, खुद का पहचान को समझा कर परमेश्वर के ज्ञान के बारे में दूसरों को समझाने तक उनको चलाया। So here Jonah is
knowing that God is not only a God of Jew, He is a God for Nineveh also. परमेश्वर योना के जीवन के द्वारा लोगों के समझा सिर्फ यहूदी लोगों का परमेश्वर नहीं हो, निनेवे के लिए भी मैं परमेश्वर हूँ। He is a God for all, ये परमेश्वर सबके लिए परमेश्वर है, not for one nation, एक जनता के लिए तो नहीं है, not for one jati, एक जाति के लिए नहीं है, not for one religion. ये एक धर्म के लिए नहीं है। He is a God for everyone. इन्हें परमेश्वर सब जाति सबका परमेश्वर है। That's why God has called us and entrusted us with His Spirit to go and speak the word of God to every nations. इसलिए परमेश्वर मुझको और आपको बुलाया और सारी देशों में जाकर सेवकाई और इस सुसमाचार बताने के लिए बुलाहट दिया। So do not worry about the situations. इस दुनिया की चीजों को देखकर डरो मत। So do not worry about the difficulties. आपके सामने आने वाला परेशानियों के बारे में देखकर डरो मत। If God sends you and gives you vision to go and minister in a place, without any hesitation, you go and minister. God will take care of the rest. अगर परमेश्वर आपको बुलाकर एक दर्शन दिए इस जगह पर तो जाना है तो जरूर वो जगह पे जाना। Missionaries did the same. Today we are reaping the harvest. सेवक लोग हमारे देश में आकर वैसे ही किया, इसलिए हम एक काटने का युग में हम जी रहा है। May God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीर्वाद दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। जैसा जबलन साहब ने बहुत अच्छा से हमको वचन से बताया, जिसे मैं ट्रांसलेट कर रहा था, ये बातें मेरे लिए भी दो नया चीजें मैं भी इस वचन से बहुत बार प्रचार कर चुका हूँ, जो पुराने लोग ऑलरेडी आप लोग सुन चुका है। फिर जबलन साहब ने एक नया सोच लेके आया, बहुत मुझे मेरे जीवन में बहुत अच्छा से मैं भी समझ पाया। पहली बात ये था, जोना को पहले उनको पता था मेरा पहचान क्या है, मेरा बुलाहट क्या है। जोना was already knew that what is his calling and what is the duty that he is supposed to do. Yet again, because of the situation, he rejected the second time when maybe in Bible it is written the second time he received the call, the first call that he thought that he had to go to Nineveh. But looking into the situation, he rejected. उनके सामने जो समस्या आया उसको देखकर खुद का पहचान को भूल गया। दो बात नहीं, तीन बातें मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे जीवन में बहुत बातें मुझे सीखने के लिए मिला। नाव की ओर तक चलने का समय तक परमेश्वर की योजना का अनुसार ही था, क्योंकि परमेश्वर के अनुसार चलना है था, नाव में चढ़ना का है। वहां से जो नाव में चढ़ना था वहां नहीं चढ़ा, खुद की इच्छा के अनुसार गया। Till the moment he went into the near to the ship, it was according to the will of God. But entering into the ship, which ship he should select, God was already told कौन सा रास्ता पे कौन सा रूट का नाव चढ़ना है। The third thing, ये पेड़ आया चले गया, उन्होंने गुस्सा किया। हमारे जीवन में भी परमेश्वर कभी कभी बहुत ठंड का अनुभव, एक निशाना का अनुभव लेके आता है, हमारा मेहनत का नहीं है। कभी कभी वो चले जाने से हम क्या करता है, मैं हमारा करके बोला, आई एम इंक्लूडिंग माई सेल्फ। व्हेन सम सिचुएशंस कम टू माई लाइफ आल्सो, आई थिंक I am safe and I am secure now. This is my comfortable place and जिंदगी सेटल। सोचने का तुरंत सुबह परमेश्वर क्या करेगा, He will remove that. And of course I am also a human being. I used to get angry, even now at times I get angry by saying, why God, why you did this? These तीन बातें मुझे बहुत अच्छा लगा। चौथा बात है अध्याय 4 का 12 वचन में एक क्वेश्चन मार्क के साथ समाप्त हुआ है। That question mark speak to me that what about you? तेरी बारे में क्या? It end with a question mark there. You can see. और वचन अंत होता है, तो क्या मैं उस पर तरस ना खाऊं? Question mark. From there we have to think about our own life. हम कोई लायक नहीं है, हम कोई मेहनत नहीं किया, फिर भी एक निशाना, एक शैडो परमेश्वर हमारे जीवन में दिया। ये हमेशा के लिए तो it is not for all our life, or it will not be there till the end of our life. Situation changes, the calling will come, but we have to accept and we have to keep the pehchan, identity always in our life. Otherwise जो जगह पर हम जाएगा उनकी जीवन में भी क्या होगा, यह उत्तर आपका हाथों में छोड़कर हम प्रार्थना करेंगे। Gracious Heavenly Father, we
come to your presence, thanking and having a heart of gratitude towards the word of God that came to us. You have told us many things for the life of Jonah by your servant Javelin. Thank you for your word. Thank you for the encouragement, God. To be frank, Lord, this was not an encouragement which came soothly into my life. It came and it gave many questions so that I can examine myself and come back to you and understand my identity. Thank you, Lord. Thank you for everything that you have done. And we confess that I did not do anything and we did not do anything. It was not my will, it was your will. And many times I went away from your will. Thank you for giving me my identity back to my life. And I understood with this identity I can live a peaceful life. Thank you for all the blessing. Thank you for all the hardship. In Jesus' mighty name, we do this prayer. Amen. Amen.